एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज इस लेक्चर में हम लोग लेजिस्लेशन डिस्कस करेंगे एज वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ। लास्ट लेक्चर में कस्टम्स डिस्कस किया था एंड इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। So legislation, being a law student, we all know this is the law making and the laws made by the legislature, the sovereign powers, right? The process of making of law, the process of amending the law, renewing the law, substituting the law. So all the things which are related to setting of law, making of law is legislation, right? So legislation एक दो Latin word से मिलके बना है, legis और latum, याद रखो। They are made up of two Latin words or derived from two Latin words, legis and latum, where legis means law and latum means to make. So legislation क्या हुआ? To make the law, right? So legislation means making of law. It is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority, right? ये वो source of law है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो भी होती है, हुआ कॉम्पिटेंट टू मेक दी लीगल रूल्स, हुआ कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट विद इन द कंट्री, राइट? सो दैट इज़ द सोर्स ऑफ लॉ. सो हियर इन इंडिया व्हाट आर दोज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? द लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स को कोडिफाई करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट दैम इनटू द लॉज, द एक्ट्स, द कोड्स एंड डिक्लेयर दैम. सो दैट declaration and which is specify the source of law, that is the legislation, right? So this particular definition has been given by Salmon, that it is that source of law which consists of declaration of legal rules by a competent अथॉरिटी. क्या है ना, कोई भी डेफिनेशन याद करनी है उसको टुकड़ों में बांट दो, बहुत आसान हो जाता है. सामन ने क्या बोला? लेजिस्लेशन एक सोर्स ऑफ लॉ है जिसमें क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ द डेक्लेरेशन ऑफ व्हाट? डेक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स. बाय whom? बाय द competent authority of the state. This is what legislation is, right? Here we are having a definition of Austin. So according to Austin, legislation means what? It means the activities which results into law making or amending, transforming or inserting the new provisions in the existing law. Thus there can be no law without a legislative act. तो ऑस्टिन ने वही कहा कि लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन includes all those activities which either results in law making, या फिर it results in amending of an existing law, transforming existing law, or inserting some new provisions in the existing law, right? So this is what legislation is according to Austin. Now there is a case of Nidhi Kaim versus State of MP of 2017. So in this, former CJI Mr. J.S. Kheher observed that legislation is enacted only with the object of. So basically इस केस के अंदर, निधि कायम के केस के अंदर, जस्टिस J.S. खेहर ने बताया कि legislation का पर्पस क्या है. What is this purpose of this particular source of law called legislation? So he said the object of legislation is of social good and only in support of societal causes. Legislation flows from reason and logic. So he says कि legislation का objective है social good को ensure करना एंड सोसाइटल कॉजेज़ के लिए रेमेडीज़ प्रोवाइड करना, उनको सॉर्ट आउट करना. दिस इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द लॉज एंड द लेजिस्लेशंस. एंड the legislation flows from the reasons and logic. There is always a reasoning behind the legislation. There is always a ratio. There is always a logic behind the legislation. So this was being observed by Justice J.S. Kheher in Nidhi Kaim versus State of MP. So because we had to begin the lecture with some introduction, so this was a very good introduction. We have provided some very good definitions and explanations of some case and the jurists, right? अब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, मीनिंग देख लिया, डेफिनेशंस देख लिया. नाउ देर आर 4 काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन. मेनली 4 तरह के लेजिस्लेशंस होते हैं. उसमें हम लोग हो सकता है सब टॉपिक्स या सब काइंड्स डिस्कस करें, बट द प्राइमरी आर 4. सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड कंडीशनल लेजिस्लेशन. सुप्रीम, सबऑर्डिनेट, डेलीगेटेड एंड कंडीशनल. अभी पता है जब हम लोग सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड डिस्कस करेंगे ना, सो it might seem you or it might confuse you that they are one and the same. बहुत डेफिनेशन इनका मैच करता है सबऑर्डिनेट का और डेलीगेट का. सो यू नीड, while you are writing an answer or while you are explaining this to somebody, you need to have a difference of the words of the language, जो कि आगे we'll read, right? So listen and read very carefully. शुरुआत करते हैं. पहला काइंड है सुप्रीम लेजिस्लेशन. सो
legislation is supreme when it proceeds from the sovereign power in the state and is incapable of being repealed, annulled or controlled by any other legislative authority. तो supreme legislation कौन सा legislation है? वो laws, वो legislation, legislative power which flows from a supreme power, the sovereign power of the state. एक state की जो supreme power है, जो sovereign power है, जिसके ऊपर और कोई power exist ही नहीं करती है, या जिसके authority को, जिसकी power को कोई भी annul नहीं कर सकता है, right? उसके against कोई counter नहीं कर सकता है. जब कोई लेजिस्लेशन उस सुप्रीम पावर से डिराइव होता है, ठीक है, उससे प्रोसीड होता है, दैट लेजिस्लेशन इज नोन एज द सुप्रीम लेजिस्लेशन. एंड ऐसा लेजिस्लेशन जो कि सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट बनाती है, ना तो किसी अथॉरिटी के पास, उसको किसी भी तरीके की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के पास ना तो उसे कंट्रोल करने की पावर है, ना ही उसको रिपील करने की, उसको चेंज करने की, उसमें एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन करने की, या उसको एनल करने की, ख़त्म करने की पावर नहीं होती है. दैट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपील्ड, एनल्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. सच अ लेजिस्लेशन इज नोन एज द सुप्रीम लेजिस्लेशन. आई होप इट इज़ क्लियर, राइट. ये भले ही 4 लाइनें हैं, पर इस 4 लाइनों में सुप्रीम लेजिस्लेशन का पूरा सार है. इसके आगे पीछे हो सकती है चीज़ें, बट द मेन कॉन्सेप्ट इज ओनली दिस वन, राइट. नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. अब सबऑर्डिनेट शब्द से समझ में आ रहा है, सबऑर्डिनेट मतलब विच इज लोअर देन द सुपीरियर वन, राइट. सुपीरियर तो वो हो गई आपकी सुप्रीम लेजिस्लेशन. अब वो सारी अथॉरिटी जो कि उस सुपीरियर पावर के, उस सॉवरेन अथॉरिटी के जो नीचे है, जो लेजिस्लेशन उस अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है या उससे डिराइव होता है, सच अ लेजिस्लेशन इज नोन एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. दिस इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द लैंग्वेज इटसेल्फ. तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन प्रोसीड्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन द सॉवरेन पावर. उस सॉवरेन पावर के अलावा किसी और अथॉरिटी द्वारा बनाया गया लॉ, किसी और अथॉरिटी द्वारा बनाया गया लेजिस्लेशन, दैट इज नोन एज द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. The legislation by the bodies which are inferior to the sovereign, that constitutes the subordinate legislation. Now what are the certain conditions which makes the subordinate legislation valid? अब कुछ conditions हैं which are necessary to be satisfied, जो कि एक subordinate legislation को valid subordinate legislation बनाता है. तो there are 3 or 4. पहला है the parent act, that is the act under which the power to make subordinate legislation is exercised, it must be valid. मतलब जिस मेन एक्ट के अंदर ये पावर दी है उस सबऑर्डिनेट बॉडी को कि यू हैव द पावर टू मेक द लॉ, तो वो जो पेरेंट एक्ट है वो वैलिड होना ज़रूरी है. पहला कंडीशन ये है. मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल एक ए एक्ट है, उस ABC एक्ट ने पावर दी है किसी अथॉरिटी को कि यू हैव द पावर टू मेक द लॉ, तो वो ज़रूरी है, पहला प्राइमरी कंडीशन, कि वो ABC एक्ट खुद में वैलिड हो, ठीक है. दूसरा कंडीशन, द डेलीगेशन लॉज इन द पेरेंट एक्ट मस्ट बी वैलिड. दूसरा कंडीशन ये कि जिस पर्टिकुलर क्लॉज ने उस अथॉरिटी को पावर दिया है वो क्लॉज खुद में वैलिड होना इज़ नेसेसरी, राइट. थर्ड कंडीशन इज द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सो मेड, जो लेजिस्लेशन बना है उस अथॉरिटी द्वारा, इट मस्ट बी इन कन्फर्मिटी विद द डेलीगेशन क्लॉज. मतलब जिस क्लॉज के विद इन, जिस डेलीगेशन क्लॉज के विद इन उसको पावर अलॉट की गई है उस अथॉरिटी को, तो वो जो अथॉरिटी ने जो लॉ बनाया है वो लॉ जो है उस क्लॉज के कन्फर्मेशन में होना चाहिए, उसके डेरोगेटरी या उसके कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, राइट. Fourth, the legislation so made must not violate the certain general norms which are laid down by the judicial decisions. Also, जो कुछ judicial decisions laid down किए गए हैं, कुछ principles judiciary द्वारा laid down किए गए हैं, उसको violate ना करता हो वो legislation, that is also necessary for it to be valid. And the last condition is that the subordinate legislation must not violate any of the fundamental rights which are guaranteed by the Constitution. Also, such a legislation should not violate all the fundamental rights जो कि guarantee हैं by the Constitution of the very state. So when all these conditions are being fulfilled, then we say that that particular subordinate legislation is a valid one. क्लियर. तो आई होप आप लोगों को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता क्या है और वो वैलिड कब माना जाएगा ये चीज़ समझ में आ गई होगी. नाउ देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. 5 टाइप्स हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के. पहला है कॉलोनियल लेजिस्लेशन. बेसिकली ये सारे वो टाइप्स बताएंगे वेयर जो इन्फीरियर अथॉरिटी है फ्रॉम द सॉवरेन, उनको जो पावर दी गई है, फ्रॉम दैट पावर दे मेक्स द लॉ,
the legislation. So these are all the kinds which have been explained here. पहला है आपका colonial legislation. So laws which are made by the government of British colonies and other dependencies were known as the colonial legislation. So when there was a rule of the Britishers, right? तो बहुत सारी उनकी colonies थी which they or the territories which they used to rule or which they or upon which they have the control. तो वो सारे laws जो उन colonies द्वारा या उनके जो भी dependencies हैं या territories थी उसमें जो बनाए गए थे, such a laws were known as the colonial legislations. Their power of law making was very limited. They could be repealed, altered or superseded by the British Parliament. तो जो भी legislations British colonies बनाते थे वो बहुत limited power होती थी and यहाँ तक कि उनके बनाए हुए laws जो है वो British Parliament द्वारा repeal भी हो सकते थे, alter भी हो सकते थे और supersede भी हो सकते थे, right? तो this was the first kind, that is of colonial legislation. दूसरा है executive legislation. So the legislature, that is a parliament, quite often delegate its rule making power to a certain department of executive organ of the government. तो कई बार क्या होता है, जो legislature है, that is the parliament, वो अपनी rule making या law making power को delegate कर देती है to the executive organ. We have read this ना, there are 3 organs of the state, legislature, executive and judiciary. तो जब legislature अपनी law making power एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करता है और जब उस पावर का इस्तेमाल करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो लॉ बनाते हैं, सच अ लॉ इज़ नोन एज द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, क्योंकि वो लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ने बनाया है, राइट? द रूल्स मेड थ्रू सच डेलीगेटेड पावर आर नोन एज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन एंड सच रूल्स आर ऑल्सो नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और द पब्लिक लॉ. और ऐसे लॉज को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कहते हैं और पब्लिक लॉ भी कहते हैं. तो याद रखना, either it is administrative law, executive law और public law, they are one and the same, right? तो ये होगा हमारे 2 kinds of subordinate legislation. The third is judicial legislation. So in the same way, जैसे जब legislature ने अपनी law making power executive को दी तो वो वहाँ पे बन गया executive legislation. वैसे ही जब अगर लेजिस्लेचर अपनी लॉ मेकिंग पावर जुडिशरी को डेलीगेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो जब जुडिशरी उस अथॉरिटी में कोई भी लॉ बनाती है तो दैट लॉ इज़ नोन एज द जुडिशियल लेजिस्लेशन. द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ रूल मेकिंग इज डेलीगेटेड टू द जुडिशरी एंड द सुपीरियर कोर्ट्स आर ऑथराइज्ड टू मेक द रूल्स फॉर रेगुलेशन, देयरफॉर दे आर नोन एज द जुडिशियल लेजिस्लेशन. बट judicial precedents are different from them, as in precedents courts formulate a new principle of law through its judicial decision. अब you're not supposed to confuse. यहाँ पे judicial precedent एक अलग concept है और judicial legislation अलग चीज़ है. देखो judicial legislation में तो जो पावर अथॉरिटी ऑफ मेकिंग द लॉ है वो लेजिस्लेचर से डेलीगेट होके जुडिशरी ऑर्गन के पास आई है. वेयर एज जुडिशियल प्रेसिडेंट में क्या होता है, इसमें जुडिशरी जो है वाइल डिटरमाइनिंग द पर्टिकुलर केस वो उसमें नए नए प्रिंसिपल्स को इवॉल्व करती है, राइट? जब केस को वो जब डिसीजन दे रहे हैं, इन द डिसीजन इटसेल्फ द कोर्ट on its own norms and considering the 3 justice, equity and good conscience, वो खुद एक नए नए प्रिंसिपल्स इवॉल्व करते हैं. तो जब वो प्रिंसिपल्स डिसीजंस पास हो जाते हैं तो लेटर ऑन उसी रो में जब कोई सिमिलर केस अराइज होता है, सो द लोअर कोर्ट्स, द ऑल दोज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर बाउंड टू कंसिडर दोज प्रेसिडेंट्स जो पहले वाले केसेस में कोर्ट्स ने, जो सुपीरियर कोर्ट्स ने जो नए प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए थे, दोज आर नोन एज प्रेसिडेंट्स. सो हियर देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. अब वैसे तो प्रेसिडेंट्स का डिटेल और एक्सटेंसिव लेक्चर हम लोग अब अगला वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट काइंड. So the next kind of subordinate legislation is municipal legislation. So there are those where the municipal authorities are allowed within their areas to make the bylaws for the purpose such as water tax, property tax, town planning, sanitation, etc. तो ये वो लॉ मेकिंग पावर है जो कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को दी जाती है. जितनी भी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल नगर निगम वगैरह जो भी होते हैं, उन लोग को अथॉरिटी देते हैं कि वो अपने एरियाज़ के लिए और जो भी पर्पसेस हैं म्यूनिसिपल से रिलेटेड, जैसे कि वाटर टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स, सैनिटेशन वगैरह, उससे रिलेटेड बायलॉज वगैरह बना सकती है. सो सच अ लेजिस्लेशन इज़ नोन एज द म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, राइट? And the fifth and the last kind of subordinate legislation is autonomous legislation.
So the state may occasionally allow the private entities or bodies such as universities, companies, corporations, etc. to make the bylaws for regulating their conduct of their business. So such a laws are termed as the autonomous legislation. So कई बार states जो है अलग अलग प्राइवेट एंटिटीज़ को, प्राइवेट बॉडीज़ को जो है अलाउ करती है या उनके ऊपर उनको अथॉरिटी देती है कि वो अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए दे कैन मेक देयर बाय लॉज फॉर वर्किंग फॉर देयर प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे कि क्या हो गया, यूनिवर्सिटीज़ को इट इज़ बीइंग अलाउड, द कंपनीज, द कॉरपोरेशंस. सो जो भी यूनिवर्सिटीज़ या कंपनीज अपने एथिक्स के लिए, अपने कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जो भी रूल्स बनाते हैं, द बाय लॉज बनाते हैं, दे ऑल आर नोन एज द ऑटोनॉमस legislations, right? So ये हो गया हमारा दूसरा kind of legislation, that is the subordinate legislation. Now the third kind is delegated legislation. Let's read it. When the function of legislation is entrusted to other organs other than the legislature itself, the legislation made by such organ is called delegated legislation. तो delegated legislation एक wider term है. It says that जब law making जो function है, लेजिस्लेशन बनाने का जो प्रोसेस है, जो अथॉरिटी है, वो लेजिस्लेचर के अलावा बाकी ऑर्गन्स जब उसको फुलफिल करते हैं या उसको एंट्रस्ट किया जाता है किसी भी और ऑर्गन को अदर देन द लेजिस्लेचर, देन वो जो ऑर्गन्स लेजिस्लेशन बनाते हैं दे ऑल आर टर्म्ड एज और नोन एज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि उनके ऊपर लेजिस्लेचर द्वारा वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी या पावर डेलीगेट की गई है. इट कैन बी आइदर एग्जीक्यूटिव organ or the judiciary organ, right? So ये याद रखो, organs other than the legislature itself, ठीक है? It may be in the form of rules, regulations, bylaws, orders, schemes, directions, circulars, notifications. तो वो legislation किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो schemes हो सकते हैं, वो notifications हो सकते हैं, वो orders हो सकते हैं, वो bylaws हो सकते हैं, वो rules हो सकते हैं, वो regulations हो सकते हैं, etc. Right? When legislative powers are delegated, such powers are subject to the provisions of Constitution and also to the provisions of the Parent Act. बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब कोई भी और ऑर्गन अदर देन लेजिस्लेचर वो लेजिस्लेटिव पावर को ऑथराइज कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम दे नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी वो लॉ बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के वॉयलेटिव ना हो, प्लस दे आर ऑल्सो विद इन द प्रोविजंस ऑफ द पेरेंट एक्ट, जिस एक्ट के अंदर उनको वो अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है. Right, so this is the condition which needs to be taken into consideration to the organs other than legislature while performing their delegated legislation. Right, and the last kind of legislation is conditional legislation. Let's read it quickly. When the legislature itself enacts a law and gives to some other body only the power of determining when it should come into force or when it should be allowed to a particular area or territory, इट वुड बी अ केस ऑफ कंडीशनल डेलीगेशन. अब ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं ये, कि जब ये कंडीशनल डेलीगेशन क्या है, ये गलत स्पेलिंग लिख गया है, नहीं इट्स राइट, इट्स लेजिस्लेशन, राइट. जब लेजिस्लेचर लॉ तो खुद बनाता है, ध्यान से सुनना, जब लेजिस्लेचर अपना लॉ मेकिंग अथॉरिटी खुद एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वो किसी और बॉडी को या किसी और अथॉरिटी को पावर देता है ऑफ डिटरमाइनिंग कि जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है वो इन्फोर्समेंट में कब आएगा, वो लागू कब होगा, या फिर वो किसी पर्टिकुलर एरिया या लोकेलिटी या टेरिटरी में अप्लाई कब होगा, देन वो जो पावर दी गई है दैट पावर टर्म्स एज द कंडीशनल लेजिस्लेशन या कंडीशनल डेलीगेशन. मतलब लॉ तो एक्चुअल में जो लॉ मेकिंग पावर है वो एक्चुअल में लेजिस्लेचर ने ही परफॉर्म की है, लेकिन उसने किसी और बॉडी को सिर्फ इतनी पावर दी है कि तुम ये फंक्शंस परफॉर्म करोगे कि ये लॉ कब इन्फोर्समेंट में आएगा, किसी टेरिटरी में कब आएगा, किसी टेरिटरी में कब नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, कितने एक्सटेंट तक अप्लाई होगा, किस लिमिट्स तक अप्लाई होगा. तो ये जो कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है उस अदर अथॉरिटी को, तो उस बिहाफ पे जो वो अपनी लॉ मेकिंग पावर एग्जीक्यूट करता है दैट इज़ नोन एज द कंडीशनल लेजिस्लेशन. राइट, conditional legislation takes place where legislature empowers the executive or the other organ to extend the operation of an existing law to particular area. कि जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर द्वारा वो किसी
कि पर्टिकुलर एरिया में कब तक ऑपरेट करेगा, पर्टिकुलर टेरिटरी में कैसे ऑपरेट करेगा, किस लिमिट तक ऑपरेट करेगा, कहाँ कहाँ उस एरिया के भी किस पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट नहीं करेगा। डिटरमाइन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू अ गिवन एरिया, कि किस एरिया में वो किस टाइम पे अप्लाई होगा। डिटरमाइन द एक्सटेंट एंड लिमिट्स विद इन विच इट वुड बी ऑपरेटिव, कितनी लिमिट के अंदर किस कंडीशंस के साथ वो ऑपरेट होगा। एंड इंट्रोड्यूस अ स्पेशल लॉ इफ सच एनी सिचुएशन हैज अराइजन इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट। ऑल्सो इस कंडीशनल लेजिस्लेशन में लेजिस्लेचर ये पावर भी डेलीगेट करता है उस अथॉरिटी के पास कि वो चाहे तो एज पर द कंडीशन ऑफ द सिचुएशन कोई स्पेशल लॉ फॉर द टाइम बीइंग भी इंट्रोड्यूस कर सकता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो कंडीशनल डेलीगेशन किया गया है उस कंटेक्स्ट में जो लॉ बनाती है वो अथॉरिटी या वो बॉडी, दैट इज़ नोन एज द कंडीशनल लेजिस्लेशन, राइट। सो ये हो गया गाइज हमारा लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट। हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने कुछ डेफिनेशंस और मीनिंग देखा, राइट। देन वी डिस्कस दी 4 काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, और उसमें हमने सबऑर्डिनेट को थोड़ा डिटेल में पढ़ा, उसके हमने कुछ वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स देखे, एंड वी ऑल्सो डिस्कस दी 5 इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सो आई होप दिस लेक्चर सीम वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और कोई डाउट है सो जस्ट लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, और कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इस वीडियो के PDF या फिर किसी भी और लेक्चर या किसी और सब्जेक्ट के PDF चाहिए तो यू जस्ट आइदर कॉन्टेक्ट ऑन आवर ईमेल ID या फिर कॉन्टेक्ट ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, दोनों के ही लिंक्स एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो गाइज कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।